السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ تو آج ہم وزٹ کریں گے دوبارہ F14 اور F15 جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے سیکٹر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کی کیا سچویشن ہے۔ تو یہ سارے حال احوال جانتے ہیں، پلاٹ کے سائزز کیا ہیں۔ آلریڈی میں بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بھی بتاؤں گا، نئے جو ویورز یا سبسکرائبرز جو ہیں وہ اگر ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں تو ان کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی ساتھ آل پہ رکھا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا کریں۔ تو چلتے ہیں پوری تفصیل، تھوڑا سا میں راستہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں کیونکہ اکثر لوگ پھر بعد میں کالز کرتے ہیں کہ اس کا راستہ لوکیشن کون سی ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو بنتی اسی لیے ہے کہ آپ پوری اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں، آپ کو اس کے میں پروز اینڈ کونس ساری چیزیں، ایریا کے کیا کیا چیزیں اس کے قریب ترین ہیں، یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اور آیا اس میں اس کی پرائسز کیا ہیں ٹوٹل، اس میں انسٹالمنٹس کتنی، ڈاؤن پیمنٹ یا کیا چیز ہے، وہ ساری تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جی، تو ابھی ہم لوگ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہیں، جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، اور ہماری جو فیسنگ ہے تو یہ 0 پوائنٹ کی طرف ہے، اور ہمارے یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ لوگوں کو جو سیکٹر یہ گھر وغیرہ بنے ہوئے دکھ رہے ہیں تو یہ G14-4 کا ایریا ہے۔ ہر سیکٹر کے 4 سب سیکٹرز ہوتے ہیں، 1 2 3 4۔ تو G14 کا 1 جو ہے ابھی وہ ڈیولپ نہیں ہوا، اس میں گاؤں بسا ہوا ہے، اس کی آلریڈی میں ویڈیو ایک اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ اس میں ویلنگ ہیں تو چینل پہ آپ سرچ کر لیں، G14 لکھ دیں گے تو آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی۔ تو بہرحال ابھی ہمارا جو مین مدعا ہے آج کا F14 اور F15، یہ سرکاری سیکٹرز ہیں، یہ سوسائٹی وغیرہ کوئی نہیں ہے، آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھ لیں۔ اور اس میں جو ڈاؤن پیمنٹس یا انسٹالمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ اس کی انٹرنس یا راستہ میں سمجھا دوں۔ یہ سامنے آپ کو PSO کا بورڈ اور KFC کا بورڈ دکھ رہا ہوگا، یہ راستہ جو ہے یہ G14 کی سروس روڈ ہے، پر ہم لوگوں نے جانا ہے، ادھر سے بھی آپ لوگ جا سکتے ہو، پر ہم لوگوں نے تھوڑا سا آگے کر کے تو یہ سروس روڈ ویسٹ جو آتی ہے G13 کی، کیونکہ G13 اور G14 بالکل پیرالل سیکٹرز ہیں۔ تو یہ آپ نے مین نشانی رکھنی ہے، یہ جو PSO کا پمپ ہے اس سے پہلے اس کے ساتھ بالکل ایڈجسنٹ جو روڈ جا رہی ہے، اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ لوگوں کو جو گھر دکھ رہے ہیں تو یہ G13-1 کا جو سب سیکٹر ہے اس کے گھر ہے۔ تو اس روڈ سے ہم لوگوں نے بالکل سٹریٹ جانا ہے اور ہم لوگ F14 کے سامنے بالکل پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد F15 کی طرف جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اچھا، یہ رائٹ سائڈ پہ G13 سیکٹر ہے، یہ گرین بیلٹ آ گئی، اور اکراس دا گرین بیلٹ اگر آپ لوگوں کو کوئی گھروں وغیرہ کی چھتیں وغیرہ دکھ رہی ہوں تو وہ G14 سیکٹر ہے۔ تو ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ انٹر ہوں گے۔ تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی، اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو پہلے آپ ویڈیو کو پورا تفصیل سے دیکھ لیں، نہ کہ آپ لوگ صرف تھمبنیل دیکھ کے اور جلدی سے فون اٹھا لیں اور کال کرنی شروع کر دیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ مطلب ہے وہ ویڈیو کو سمجھتے ہیں، پہلے پوری صورتحال ویڈیو میں سمجھ جاتے ہیں، پھر ریلیونٹ کوسچن، پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہیں، بس صرف تھمبنیل کو پڑھ لیا اور جلدی سے فون نمبر نکال کے تو اس پہ کال کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر ارریلیونٹ سے کوسچن ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم پھر اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ چلیں خیر، ہمارا جو مین مقصد ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو گرین بیلٹ کے اوپر آپ کو پارک وغیرہ بنا ہوا دکھ رہا ہے، اور یہ رائٹ سائڈ پہ ابھی ہمارے جو سیکٹر شروع ہو گیا ہے تو G13-2 کا سب سیکٹر ہے یہ۔ ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے، اور ہم لوگ وہ سامنے اگر آپ لوگوں کو دور پہاڑوں کے قریب اس سائڈ پہ اگر کوئی آبادی وغیرہ دکھ رہی ہے، آپ کو کیمرے کی آنکھ دکھا پا رہی ہے، تو یہ ادھر یہ ایریا شروع ہو جاتا ہے F14 کا۔
खैर ये सामने जो घर बने हुए हैं ये F14, क्योंकि ये रोड स्ट्रेट जाएगी, तो ये रोड के बीच में आ रहे हैं फिलहाल राइट नाउ ये जो घर है। पर इस साइड पे थोड़ी सी ये F14 4 में इस साइड पे, ये ग्रीन बेल्ट की साइड पे अगर आपको ये आबादी दिख रही है, तो इधर इस एरिया में थोड़ी सी आबादी, गांव की आबादी ज्यादा है इधर। अच्छा, इसमें जो प्लॉट के साइजेस हैं F14 के हवाले से अगर हम बात करें और F15 के हवाले से, अच्छा F15 में 2 सब सेक्टर्स हैं जो 1 और 2, तो वो जम्मू कश्मीर सोसाइटी में आते हैं, तो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप लोग कोई गलत फहमी का शिकार ना हो ना, अक्सर लोग उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, तो उसका ऐसा कोई खास आइडिया हमें नहीं है, क्योंकि हम इधर सरकारी सेक्टर्स को ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि इसको डील करें। सोसाइटीज में आजकल आपको जैसे पता है कि काफी उन पे अताब आया हुआ है और काफी फ्रॉड भी हुए हैं लोगों के साथ, तो हमने तो खैर इनिशियली स्टार्ट में भी कभी सोसाइटीज को ऐसे डील नहीं किया। हाँ, चंद सोसाइटीज हैं जो प्रॉपर सोसाइटीज हैं, जिस तरह B17 हो गई है या फैसल हिल्स हो गई है, अभी वो प्रॉपर सोसाइटीज हो गई है, टॉप सिटी हो गई है, मुमताज सिटी हो गई है। अच्छा, इसके हवाले से अगर हम लोग बात करें F14 के हवाले से और F15, इसमें प्लॉट के जो साइजेस हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 साइजेस हैं। एक 10 मरला है जिसकी डायमेंशन है 35 बाय 70 और 272 गज भी उनको कहा जाता है। उसके बाद 40 बाय 80 की डायमेंशन में, जिसको 12 या 14 मरला भी आप कह सकते हो, और 356 स्क्वायर यार्ड्स का उसका साइज होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा साइज है तो उसको 500 गज कहा जाता है, 50 बाय 90 उसकी डायमेंशन और कनाल भी आप कह सकते हो। तो साइजेस F14 में 4 सब सेक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 4, और F15 में सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 जो 2 सब सेक्टर्स हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी आते हैं। अच्छा, इसकी जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है इन सेक्टर्स का, तो ये NLC इसको डेवलप करेगा, उनके साथ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। मेन जो रोड्स हैं, जो जैसे आप समझो कि ईस्ट सर्विस रोड है F15 की, तो वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उस पे लुक वगैरह भी डल चुकी है। जाके अभी देखते हैं, आप अपनी आंख से भी देख लोगे। और जो F14 की वेस्ट सर्विस रोड है, तो वो भी ऑलरेडी उस पे भी काम काफी तेजी से चल रहा था, तो देखते हैं कि उसमें डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है। मैं अंदर भी आप लोगों को लेके जाऊंगा। ये राइट साइड पे सामने आपको ये मशीनरी वगैरह खड़ी दिख रही है, तो ये NLC की मशीनरी है जो डेवलपमेंट कर रही है F14 और F15 की। और ये लेफ्ट साइड पे जो आप लोगों को घर दिख रहे हैं, तो ये सेक्टर G14 है। G14 2 का एरिया आप कह सकते हो। ये जो घर है ये लेफ्ट साइड पे ये 3 में आ रहे हैं। वो सामने जो टैंकर आपको क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, तो वो उससे अक्रॉस जो है G14 2 का एरिया शुरू हो जाता है। ये आप देख ले, मशीनरी वगैरह काफी खड़ी है। आज मेरे ख्याल से संडे का दिन है, तो उस वजह से शायद कोई काम बंद पड़ा हुआ है, या बारिश भी हुई थी कल, तो मे भी उस वजह से भी काम बंद पड़ा हो। तो बहरहाल देखते हैं, अभी कोशिश करूंगा कि आपको मैं अंदर लेके जा सकूं। ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मेन रोड 802 जो है G14 2 और 3 को जो बाइफरकेट करती है। अच्छा, इसमें जो डाउन पेमेंट मीन्स के ये सरकारी लोगों को अलॉट, जो सरकारी फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन होते हैं, तो उनको अलॉट हुए थे ये प्लॉट। ये नहीं कि अभी ये इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, आप आओगे और आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। इसमें 3 इंस्टॉलमेंट पेड है ऑलरेडी, और चौथी इंस्टॉलमेंट पे अब इसकी ट्रांसफर होगी। अच्छा, इसमें जो इंस्टॉलमेंट की सिचुएशन है, जो आप समझे कि 4 इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों को ट्रांसफर मिलेगा, और उसके बाद फिर 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स मजीद होंगी। वो एक डिफरेंट प्राइस है उसकी, तो वो भी मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता दूंगा। 10 मरले का जो प्लॉट है, तो उसमें 8 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है। तो आप समझो कि आपने अगर 4 इंस्टॉलमेंट कट इन शॉर्ट में कर देता हूं, तो 8 चौके 32 लाख रुपए है। तो आप लोगों ने जो पेड अमाउंट है, तो वो सेलर को पे करनी है। उसके बाद इसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट इसके ऊपर कोई
F14 और F15 दोनों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. इसमें फिर वेरिएशन होती है प्लॉट्स के नक्शे के ऊपर और फिर एरिया के ऊपर. कहीं आबादी बहुत ज्यादा है तो वो सस्ते होते हैं. तो वो अराउंड कोई 80 लाख प्रॉफिट से शुरू होके तो 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक लोग. अच्छा प्लॉट मेन डबल रोड का या ऐसे कोई बड़ी रोड का या कॉर्नर होगा तो उसकी थोड़ी सी प्राइस और भी ज्यादा होगी. अच्छा, उसके बाद जो 40/80 जो 12 या 14 मरला प्लॉट है तो उसकी प्राइस जो है वो अराउंड कोई पेड अमाउंट जो है 10-10 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट तो 40 लाख रुपए पेड होंगे. और उस पे जो प्रॉफिट चल रहा है तो वो भी ऑलमोस्ट कोई 90 लाख रुपए से शुरू होके तो 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक उसका प्रॉफिट चल रहा है. आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ. 12 तारीख है और 7वां महीना है और 2026 है. लेफ्ट पे आपको G15-3 का थोड़ा सा एरिया, इसमें सारे 5 मरले के प्लॉट हैं. अगर इधर भी आप लोग कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं. अच्छा, ये जिस रोड के ऊपर हम जा रहे हैं तो ये सामने आपको थोड़ी सी आबादी अगर कैमरे की आंख दिखा पा रही हो तो इस आबादी के अक्रॉस जो है वो सामने, इस आबादी के अक्रॉस जो है आपको GT रोड मिलेगा. ये रोड फ्यूचर में GT रोड के साथ बस कनेक्ट करेगी ऑलमोस्ट. ये सामने जो आपको वो बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं तो ये अक्रॉस द GT रोड है. एक तो ये चीज आप लोग ज़हन में रख लो कि फ्यूचर में अगर आप GT रोड की तरफ से आते हो तो इधर से भी आप एंट्रेंस कर सकते हो. अब ये राइट साइड पे हमारे जो एरिया है तो ये F15 का एरिया है. तो मैं थोड़ा सा अब इधर से यू टर्न लेता हूँ और कोशिश करेंगे कि अंदर हम लोग जाएं और एरिया भी एक्सप्लोर करें और देखें कि कौन कौन से एरियाज में कटिंग हो चुकी है, क्योंकि सुना है काम काफी तेजी से चल रहा है इधर. तो बहरहाल आगे से रोड बंद है, थोड़ा सा हम लोग इधर से रिवर्स करते हैं और फिर कोशिश करूंगा कि मैं बारिश की वजह से मैं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हुई तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगा. अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को अंदर का पूरा विजिट करवा दूं. अच्छा, कनाल के जो प्रॉफिट चल रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से लेके तो उस पे तकरीबन 2-2.25 करोड़ रुपए तक, वो भी डिपेंड ऑन लोकेशन, मेन डबल रोड का है या कहाँ का प्लॉट है, बड़ी रोड का है, क्या चीज नहीं है. आप लोग समझते होंगे कि ये वेरिएशन प्लॉटों में जो होती है वो इसी वजह से होती है. तो अभी अंदर का तो इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है. बहरहाल चले, मैं कोशिश करता हूँ कि एंट्री ले लो इधर से. कोई तरीका करते हैं, नहीं खुला हुआ है. चले देखते हैं जहां तक हम जा पाए. तो आप, क्योंकि आप लोगों की खातिर, काफी लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं कि आप अंदर हमें लेके जाएं और विजिट कराएं एरिया का पूरा, तो कोशिश तो हमारी ये होती है कि सारा एरिया हम आप लोगों को विजिट करवा दें. अच्छा, कनाल का प्रॉफिट भी मैंने बता दिया. 12 या 14 मरला का जो प्लॉट है उसकी भी प्राइसेस मैंने बता दी. अच्छा, ये 10-12 दिन पहले मैं आया था तो ये रोड पे काम नहीं हुआ था. ये इसकी जो सर्विस रोड साउथ आएगी, इधर से ये सेक्टर शुरू होगा. तो ये आपको स्ट्रीट्स कटी हुई दिख रही है. इस रोड के ऊपर 40/80 के साइज के प्लॉट हैं और ये डेवलपमेंट का काम तो चल रहा है इसमें. जो मेन ये ईस्ट सर्विस रोड है 15 की, तो इस पे काम चल रहा है. ये इसके जो नाला वगैरह सेंटर में रोड के अंदर बना हुआ है तो वो उस पे तामीराती काम हो रहा है काफी तेजी से. बहरहाल चलते हैं आगे भी देखते हैं. थोड़ा सा ये इधर से मैं नीचे की तरफ गाड़ी को ले जाऊं क्योंकि आगे इन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है. ये आप देख लें, मशीनरी काफी खड़ी है और डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से चल रहा है. प्राइसेस और प्रॉफिट भी मैंने आप लोगों को बता दिए. कोशिश करता हूं कि आपको 1-2 स्ट्रीट्स भी अंदर से दिखा दूं. ये रोड तो ऑलरेडी आप समझो कि तकरीबन इस पे ब्लैक टॉपिंग वगैरह भी हो गई है. बाकी ये है कि सरकारी सेक्टर है, सोसाइटीज वाला काम नहीं है कि आप लोग डर रहे हो इससे. सरकारी इदारे भी खैर इतने वो चित्ते नहीं है कि वो ऐसे फौरन काम कर लेंगे. आप लोग भी हमें बताइएगा कि जिस कंडीशन में ये काम चल रहा है तो आपके ख्याल में इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि FGEHA का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, तो वो कोई ऐसे खातिर ख्वाह अच्छा नहीं है.
पर अभी इन्होंने एनएलसी को ठेका दिया हुआ है, मे बी वो जल्दी जल्दी में ये सेक्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो जो एरियाज उनको खाली मिल रहे हैं तो उस पे वो काफी तेजी से काम कर रहे हैं। जैसा कि वो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वो F14 की वेस्ट सर्विस रोड है, तो उस पे भी काफी तेजी से अभी उधर भी लेके जाता हूँ मैं आप लोगों को, देखता हूँ कि आगे की क्या सिचुएशन है। अब हम बात कर रहे थे कि FGHA का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि G14-1 का सेक्टर सालों साल हो गए अभी तक ऐसे ही एज इट इज पड़ा हुआ है। तो इधर भी ये इन्होंने ये जो रोड बाइफरकेट करती है, मेरे ख्याल से ये वाली जो F15 4 और 3 को बाइफरकेट करती है, तो ये शायद वो वाली रोड हो। तो बहरहाल चलते हैं आगे, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, देखते रहें वीडियो को। अच्छा, ये सामने जो मशीनरी आपको दिख रही है ना, ये अभी हमारे लेफ्ट साइड पे जो एरिया है, तो ये F15 3 और 4 का एरिया है। मशीनरी के उस साइड पे जो आपको वो सामने वाला मशीनें खड़ी हैं और उससे उस साइड पे जो एरिया है, तो ये F15 3 का एरिया है। और ये इस साइड वाला, क्योंकि ये सामने जो आप लोगों को दीवार सी दिख रही है ये वाली, तो ये जो है आपका नाला जो क्रॉस हो रहा है, जो बाइफरकेट कर रहा है F15 3 और 4 को। तो इससे पहले ये वाला एरिया जो है ये F15 4 का एरिया आ गया है, और इस साइड पे हमारे F14 1 का। और वो सामने अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, वो सामने मशीनें आपको दिख रही हो, तो ये F14 2 का एरिया है। तो डेवलपमेंट वैसे ठीक ही चल रही है, जो जो एरियाज इनको खाली मिल रहे हैं तो उधर ये काम की सूरत हाल जो है वो ठीक है, तेजी से काम चल रहा है। पर बहरहाल देखते हैं, अब कोशिश करते हैं F14 के अंदर भी आप लोगों को ले जाऊं, क्योंकि इधर इन्होंने आगे रोड बंद की हुई है बारिशों की वजह से। काफी थोड़ा सा वो रोड जो है, बारिश जो हुई है आज सुबह में और रात को जो बारिश हुई है, तो उसकी वजह से काफी थोड़ा सा रोड वगैरह पे प्रॉब्लम चल रहा है। तो बहरहाल चलें, देखते हैं, अब F14 के अंदर जाते हैं और उधर की भी सूरत हाल देखते हैं। तो प्राइसेस वगैरह, अच्छा, इसकी जो ऑलमोस्ट जो टोटल इसकी प्राइस जो है उसके हवाले से भी अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊं ना, तो इसकी तकरीबन 10 मरले की जो प्राइस है, टोटल सरकारी जो प्राइस है, तो वो अराउंड कोई 1,20-25 लाख रुपए बनती है। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट चली गई है वो एडजस्ट होंगी। प्रॉफिट इसका जो भी सेलर होगा वो अलग से होगा, और इसकी टोटल प्राइस 1,20 है या 25 है, ऐसे ही वो। बहरहाल अगर फिर आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी तफसील दे दूंगा इस हवाले से भी। 40/80 की आई थिंक सो के 160 या 180 इस तरह कोई प्राइस बनती है, और कनाल की तकरीबन कोई 2 करोड़ कुछ प्लस में शायद बनती है। एग्जैक्ट मैं फिर बाद में आपको बता दूंगा अगर आप लोग विलिंग हो परचेजिंग में। बाकी बार बार मैं कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखा करें, आधी वीडियो ना देखा करें या स्किप करके ना देखा करें। पूरी तफसील वीडियो के अंदर होती है, पर बाज लोग जो होते हैं वो बगैर वीडियो देखे बार बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और बस वो फिर इररेलेवेंट कॉलें करना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली गुजारिश है, पूरी वीडियो देख के फिर अगर कोई कहानी समझ में ना आए तो फिर आप लोग कॉल कर लिया करें। तो चलते हैं अब F14 के अंदर, कोशिश करते हैं। उधर भी काफी डेवलपमेंट हो गई है। F14 के 1 में काफी काम चल रहा है, 2 के अंदर काफी काम चल रहा है, 3 के अंदर भी पॉकेट्स में जहां जहां इनको खाली जगह मिलती है उधर वो काम कर रहे हैं एनएलसी वाले। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये F14 के अंदर भी ले जाऊं, तो इधर से अभी हम लोग एंट्री करते हैं और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अंदर की कुछ स्ट्रीट्स भी दिखा दूं। तो देखते हैं अब गाड़ी जा पाती है कि नहीं। नहीं, मुश्किल है, वो आपको सामने
दिख रहा होगा तो बारिश की वजह से काफी इधर सूरत हाल खराब है, तो ये न हो के हमारी गाड़ी फंस जाए। तो बहरहाल चले, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लेके आऊंगा। बहरहाल सूरत हाल आप लोगों ने देख ली सारी। ये भैंसे वगैरह, रात को जो बारिश हुई है तो पानी खड़ा हो गया, तो उसमें नहलाई जा रही है भैंसे वगैरह गांव की। अच्छा जी, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको और भी इसकी तफसील, ये प्रॉपर जो सेक्टर बनते हैं ना, तो इसमें पार्क्स, मसाजिद, स्कूल्स, मार्केट्स वगैरह के तमाम प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक ये प्लान प्रोग्राम के तहत ये सेक्टर्स बनते हैं। ये नहीं है कि ये कोई गली मोहल्लों वाले सेक्टर्स हैं, ये प्रॉपर सेक्टर्स हैं। दूसरा, एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट ये तकरीबन आप समझो कि 10 से 15 मिनट के फासले पे ये सेक्टर बनता है। मेन कश्मीर हाईवे से आप 1 से 1.5 या 2 मिनट के फासले पे आप लोग अंदर आओगे G14 की बैक साइड पे, तो ये सेक्टर आपको मिलेगा। 0 पॉइंट से ऑलमोस्ट कोई 10 से 15 मिनट में आप लोग इधर पहुंच सकते हैं। ब्लू एरिया से कोई 12-13 मिनट लग जाएंगे या 20 मिनट लग जाएंगे, बहुत अगर होगा तो 20 मिनट्स आपके लग जाएंगे। तो ये एक मतलब अप्रोच के एरिया में। दूसरा, इसके साथ F13 सेक्टर आने लगा है, CDA का जो सेक्टर है, उसके बाद D13 वगैरह, उसके बाद C14, C15, ये सारा एक मतलब एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन बन जाएगा। तो CDA सेक्टर्स के हवाले से अगर आप कोई भी मतलब सेल परचेज करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट लेना चाह रहे हैं, कोई मकान, कोई दुकान, कोई कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। बाकी किसी और सेक्टर या सोसाइटी के हवाले से अगर आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हो, तो तब भी हमें कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा बताइएगा, तो इंशाल्लाह उधर भी आपको ले जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों ने इन सेक्टर्स में G13, G14, F14, F15 में आप लोगों ने कोई सेल परचेज करनी है अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज छोड़ दें, तो इंशाल्लाह हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हमारे ऑफिस का कोई बंदा आपसे राब्ता कर लेगा। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।